Hello children, in this video I am going to tell you a very interesting suspense story, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory, which is given in your Honeydew book in lesson number 4. And this story is written by Satyajit Ray. First of all, I will tell you about Satyajit Ray. Satyajit Ray was a Bengali writer. He was an Indian filmmaker, screenwriter, lyricist, author, and he is regarded as a greatest filmmaker. He was born on 2nd May 1921 and died on 23rd April 1992 in Kolkata, West Bengal. He has written many short stories revolving around different urban characters. The main character of this lesson is Bipin Chaudhary, who was a widower. Widower means a person whose wife is already dead. So, Bipin Chaudhary was a widower. He was living alone and having very less number of friends. And he don't like to chat unnecessarily with his friend. वो अपने फ्रेंड्स से अननेसेसरली बातें करना पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसके बहुत कम फ्रेंड्स भी थे. इंस्टेड ही यूज टू रीड बुक्स. ही लाइक्स टू रीड क्राइम स्टोरी, घोस्ट स्टोरी एंड थ्रिलर्स. वो बातें नहीं करता था अपने फ्रेंड्स से, लेकिन अननेसेसरी चैट में बिज़ी नहीं रहता था, बल्कि उसकी जगह पे वो बुक्स पढ़ा करता था और उसे घोस्ट स्टोरी और क्राइम स्टोरी ये सब पढ़ना बहुत पसंद था. सो एवरी मंडे ही यूज टू विजिट काली चरण's बुक शॉप विच वॉज सिचुएटेड इन द न्यू मार्केट, काली चरण बुक स्टोर which you can see in the picture, and he was going there for buying books. One day at bookshop, when he went there for buying books, he found that someone was observing him and recognizes him. कोई उसे देख रहा था और उसे पहचान लेता है. विपिन बाबू को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और उसे पहचानता है. But Bipin Babu did not recognize that person. That stranger introduced himself as Parimal Ghosh, who said that he met him in Ranchi in 1958. वो आदमी जो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, उन्हें पहचान जाता है, बिपिन बाबू को पहचान जाता है. वो अपने आप को बताता है कि वो उसका नाम परिमल घोष है और वो उनसे रांची में मिला था, जबकि बिपिन बाबू उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते. Bipin Babu did not pay much attention to his talk because he knew that he never been to Ranchi. उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो रांची नहीं गए थे. But Parimal Ghosh continued talking about certain people, incident and few personal details like the death of his wife, his brother died due to madness. So this type of details uh, was said by परिमल घोष. परिमल घोष बहुत सारा पर्सनल डिटेल बिपिन बाबू के बारे में बताता है, बिपिन बाबू के लाइफ के बारे में बताता है. सो बिपिन बाबू आफ्टर हियरिंग ऑल दिस he had just avoid that person and he left the bookshop. बिपिन बाबू को के पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो परिमल घोष बताता है और बोलता है कि वो रांची में उनसे मिला था, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और बुक शॉप से चले जाते हैं. बट द डाउट विच वॉज क्रिएटेड इन हिज माइंड बाय परिमल घोष वॉज स्टिल देयर. लेकिन जो डाउट परिमल घोष ने उनके दिमाग में क्रिएट कर दिया था, वो अभी भी था. ही बिगेन टू वंडर if he was suffering from amnesia. Amnesia is a type of disease in which memory is lost when he don't remember anything about his past. So he was thinking that कि वो कहीं amnesia disease से तो नहीं affected है.
But again, he thinks that he was working very efficiently in his office without forgetting anything. Then how can he forget a trip to Ranchi? फिर वो सोचते हैं कि नहीं, वो तो ऑफिस में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं और बिना और कुछ भूलते भी नहीं हैं, तो वो रांची का जो ट्रिप था उसे वो कैसे भूल गए, जो कि परिमल घोष ने उन्हें बताया. He was completely sure that he had never been to Ranchi, but the personal details about him given by Parimal Ghosh confused him. उन्हें श्योर था कि वो रांची कभी नहीं गए थे, लेकिन जो पर्सनल डिटेल परिमल घोष ने दिया उन्हें, इससे वो ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि वो उस आदमी को नहीं पहचानते थे, और लेकिन वो आदमी उनके बारे में सारा सब कुछ जानता है, तो ये चीज़ उनको कंफ्यूज कर रहा था. The incident impacted Bipin Babu to such an extent that he started checking the authenticity of the stranger's remark by asking his friend. और वो इंसिडेंट इतना इम्पैक्ट उनके दिमाग पे इतना इम्पैक्ट कर दिया था कि वो अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगे, अपने फ्रेंड्स से पूछने लगे. He also checked all old injury mark on his right knee. और परिमल घोष ने ये भी बताया था कि वो जब रांची गए थे और हुड्रो फॉल घूमने गए थे, तो वहाँ पे वो गिर गए थे और उनके नी में एक कट मार्क, नी उनका कट गया था, थोड़ा सा स्क्रैच हो गया था, जिसके कारण जिसकी दाग अभी भी उनके नी पे है. तो ये चीज़ परिमल घोष ने बताया था, तो इसीलिए अब वो उस चीज़ को भी अपने नी पे देखते हैं कि सच में है कि नहीं है. Then Bipin Babu put a phone call to his friend Dinesh Mukherjee and he asked him about Ranchi trip. Then Dinesh Mukherjee also replied that yes, he went to Ranchi and Bipin Babu was also there with him. Dinesh Mukherjee भी yes बोलते हैं कि yes वो रांची गए थे और बिपिन बाबू भी उनके साथ थे. Now after hearing this, Bipin Babu for the first time in his career, he was unable to focus on his official work and he returned home. वो अब ये सब सुनने के बाद काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वो घर चले जाते हैं. एंड स्पेंड हिज टाइम टू रिवेल द मिस्ट्री. और फिर पूरे टाइम वो सोचते रहते हैं इसी मिस्ट्री के बारे में, इसी रांची ट्रिप के बारे में. इन इवनिंग हिज स्कूल फ्रेंड चुन्नी लाल विजिटेड हिम. ही वॉन्टेड दैट बिपिन बाबू वुड हेल्प हिम इन फाइंडिंग जॉब, बट बिपिन बाबू couldn't help him, so he avoided meeting him. चुन्नी लाल आते हैं उनके स्कूल के फ्रेंड और वो चाहते थे कि बिपिन बाबू उनके लिए एक जॉब ढूंढ दें, लेकिन विपिन बाबू जॉब उनके लिए नहीं ढूंढते हैं और इसीलिए वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते. However, that evening he decided to meet चुन्नीलाल and ask him about रांची ट्रिप. लेकिन उस इवनिंग को वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो चुन्नीलाल से मिलेंगे और रांची ट्रिप के बारे में उनसे पूछेंगे. चुन्नीलाल shows that he was surprised at बिपिन बाबू's question about रांची ट्रिप. चुन्नीलाल ये क्वेश्चन जब सुनते हैं रांची ट्रिप का, जब बिपिन बाबू उनसे पूछते हैं रांची ट्रिप के बारे में, तो चुन्नीलाल दिखावा करते हैं कि वो बहुत ही सरप्राइज हो गए उनकी इस क्वेश्चन से. क्यों दिखावा करते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल फाइंड दैट नथिंग वॉज हैपन टू बिपिन बाबू, रैदर इट वॉज अ प्लान ऑफ चुन्नीलाल टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम. आप लोग एंड में, स्टोरी के एंड में आप लोग समझेंगे कि बिपिन बाबू को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि ये सारा प्लान जो रांची ट्रिप का जो चल रहा था, ये सब चुन्नीलाल का प्लान था. बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे, लेकिन ये चुन्नीलाल का प्लान था ताकि वो बिपिन बाबू को इस तरह की बातें बोल के ऐसा उनको फील कराएं कि वो मैड होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं, ताकि वो उनसे रिवेंज ले सके, बदला ले सके. क्योंकि बिपिन बाबू को वो कब से बोले थे कि उनके लिए एक जॉब ढूंढ दें, लेकिन अब तक बिपिन बाबू ने उनके लिए जॉब नहीं ढूंढा था और फिर उनसे वो मिलना भी नहीं चाहते थे. सो चुन्नीलाल also said
that earlier he was working as travel agent and he himself had booked ticket for Bipin Babu, and he also went to see off him at the station. तो वो बिपिन बाबू को बोलते हैं कि यस यस, पहले वो ट्रैवल एजेंट थे और उन्होंने ही रांची का टिकट बुक किया था बिपिन बाबू के लिए, और वो ही उनको स्टेशन पे भी छोड़ने गए थे। और ट्रेन में जब एक फ़ैन उनके कंपार्टमेंट का फ़ैन नहीं वर्क कर रहा था, तो उन्होंने ही इलेक्ट्रिशियन को बुला के उस फ़ैन को भी ठीक कराया था। तो ये सभी बातें चुन्नीलाल बिपिन बाबू को बताते हैं। देन ही सेड टू बिपिन बाबू दैट यू आर लुकिंग अनवेल। वो बोलते हैं बिपिन बाबू को, चुन्नीलाल बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से बीमार लग रहे हो। देन बिपिन बाबू कंसल्टेड डॉक्टर चंदा and Dr. Chanda has prescribed some medicine, and he also suggested that Vipin Babu should take proper sleep, and he also said that the case seemed very strange and he had never come across such type of case, so he suggested to visit to Ranchi, which might help Bipin Babu to recollect memory of that place. डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं और प्रॉपर स्लिप लेने के लिए बोलते हैं, और वो ये भी सजेस्ट करते हैं विपिन बाबू को कि वो एक बार रांची फिर से जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम कुछ मेमोरी भूल जाते हैं, अगर किसी एक्सीडेंट के वजह से कोई कुछ मेमोरी भूल जाता है, तो उस जगह पे उसको ले जाया जाता है तो उसकी मेमोरी वापस आने की चांसेस रहती हैं। तो इसीलिए बिपिन बाबू के साथ भी ऐसा ही था, तो इसीलिए डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि वो एक बार रांची जाए, शायद हो सकता है उस प्लेस को देख के उनकी मेमोरी वापस लौट आए। बिपिन बाबू लेफ्ट फॉर रांची सेम इवनिंग बट डिडंट फाइंड द प्लेस फैमिलियर। वो रांची चले जाते हैं, उसी इवनिंग को चले जाते हैं और पूरे रांची में घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फैमिलियर नहीं लगता है, सब कुछ नया नया लगता है। ही इवन वेंट टू हुड्रो फॉल बट नथिंग हेल्प हिम टू रिकलेक्ट एनी मेमोरी ऑफ द ट्रिप। वो हुड्रो फॉल भी जाते हैं जहाँ पे वो पहले गए थे पिछले ट्रिप में, तो वहाँ भी जाते हैं, लेकिन हुड्रो फॉल भी उनको नया सा लगता है और उसे भी देख के उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। नाउ बिपिन बाबू वॉज श्योर दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम वेरी डेंजरस डिजीज़ ऑफ फॉरगेटिंग थिंग्स एंड इन दैट शॉक ही फेंटेड देयर। जब हुड्रो फॉल जाते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं आता है, तो वो श्योर हो जाते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी लग गई है चीज़ों को भूलने की, और ये सोचते सोचते वो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे ही केम बैक टू कोलकाता एंड थॉट दैट नाउ ही बिकेम मैड। नेक्स्ट डे वो कोलकाता आते हैं और ये सोचते हैं कि अब वो पूरी तरीके से मैड हो चुके हैं। ही कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाते हैं वो, बट बिफोर डॉक्टर्स अराइवल ही गॉट अ लेटर फ्रॉम चुन्नीलाल इन विच इट वॉज रिटन अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो डॉक्टर के आने से पहले उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले उनको चुन्नीलाल का लेटर मिलता है और उसमें लिखा रहता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। And through this letter it was clear that Bipin Babu was not having any problem, but he was tricked by his friend Chunilal। और उस लेटर को पढ़ के उनको पूरी अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई भी बीमारी नहीं हुई है, बल्कि उनके फ्रेंड ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है सिर्फ बदला लेने के लिए। नाउ ही हैड अ फीलिंग ऑफ एनोयंस एंड रिलीफ। वो थोड़ा सा लेटर को पढ़ के उन्हें गुस्सा भी आता है, क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया था, उसे ट्रिक किया था, लेकिन रिलीफ भी महसूस होता है, क्योंकि अब उनको श्योर हो गया है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है। सो व्हेन डॉक्टर केम ही आस्क्ड हिम फॉर अ पेन किलर एंड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वेंट टू रांची एंड रिकलेक्टेड हिज मेमोरी।
अब जब डॉक्टर आते हैं उनके पास तो वो सिर्फ एक पेन किलर मांगते हैं, क्योंकि वो रांची जब गए थे, हुड्रो फॉल गए थे, तो वहाँ पे फेंटेड हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो वो गिर पड़े थे, तो उससे उन्हें चोट आई थी। तो इसीलिए वो डॉक्टर से पेन किलर बस मांगते हैं और बोलते हैं कि रांची जाके उनकी मेमोरी वापस आ गई, उन्हें सब कुछ याद आ गया। तो डॉक्टर भी बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं कि ये जो उनका केस है उसे वो मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश करेंगे। So this was the story of Bipin Chaudhary's lapse of memory. I hope you have understood the story. Thank you.